question is, for any sets A, B and C, prove that following properties of sets operations. A minus B union C equals to A minus B intersection A minus C. तो स्टूडेंट्स, अगर हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, इट मीन्स हमें दो बातें प्रूव करनी है. नंबर एक, वी हैव टू प्रूव A माइनस B यूनियन C इज ए सबसेट ऑफ A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C. और बच्चों दूसरी बात हम लोगों को जो प्रूव करनी है वो ये करनी है, A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C इज ए सबसेट ऑफ A माइनस B यूनियन C. ओके, नाउ we are going to prove, first of all we will prove that the first thing, to prove the first thing, A minus B union C is a subset of A minus B intersection A minus C. देखिए, जब हमें इसको प्रूव करना है तो हम बोलेंगे now let any element, arbitrary element x belongs to A minus B union C. और बच्चों अब हम कोशिश करेंगे इसमें कि x belongs to A minus B intersection A minus C आ जाए. दिस इम्प्लाइज, अगर x belongs to A minus B union C है, इसका मतलब हुआ x belongs to A and x not belongs to B union C. This implies x belongs to A and x not belongs to B, not belongs to B and x not belongs to C. This implies, ये वो बच्चों x belongs to A and x not belongs to B and इसी तरीके से x belongs to A and x not belongs to C. This implies बेटा, अगर x belongs to A है and x not belongs to B है, it means x belongs to A minus B and x belongs to A and x not belongs to C है, it means x belongs to A minus C. This implies, देखिए अब यहाँ पे x belongs to A minus B है and x belongs to A minus C आ गया, तो यहाँ इंटरसेक्शन की थ्योरी लग जाएगी. तो x belongs to A minus B इंटरसेक्शन A minus C. सी, हम x belongs to A minus B union C से लेके चले थे और x belongs to A minus B इंटरसेक्शन A minus C पर आ गए बच्चों. तो हम क्लेम कर देंगे, so we say that A minus B union C is a subset of A minus B intersection A minus C. और ये वाली बात हमारी हो जाती है नंबर एक बात. Now we will prove the second thing. Okay, now to prove the second is A minus B intersection A minus C is a subset of A minus B union C. तो इसके लिए हम लोग लेट लेके चलेंगे. देखिए इसी का रिवर्स प्रोसेस हमारा यहाँ पे शुरू हो जाएगा. लेट अस सपोज एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट y बिलोंग्स टू A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C. दिस इम्प्लाइज, इसी का नेक्स्ट स्टेप हम लिख देंगे अब रिवर्स में, y बिलोंग्स टू A माइनस B एंड y बिलोंग्स टू A माइनस C. This implies y belongs to A and y not belongs to B and y belongs to A and y not belongs to C. This implies
देखिए y बिलोंग्स टू a एंड y नॉट बिलोंग्स टू b, यहाँ पे y बिलोंग्स टू a एंड y नॉट बिलोंग्स टू c है, तो हम y बिलोंग्स टू a कॉमन ले लेते हैं एंड y नॉट बिलोंग्स टू b एंड y नॉट बिलोंग्स टू c. ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इम्प्लाइज, अब इसको हम लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a एंड y नॉट बिलोंग्स टू b यूनियन c. अगर y b में भी नहीं है c में भी नहीं है, इसका मतलब y b यूनियन c में भी नहीं होगा. दिस इम्प्लाइज वी कैन से दैट, बेटा यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, y बिलोंग्स टू a होगा, y belongs to a. So it will be now y belongs to a minus b union c. Okay, अब देखिए y belongs to a minus b इंटरसेक्शन a minus c से लेके चले थे और y belongs to a minus b union c पर आ गए, तो हम लोग लास्ट में क्लेम कर सकते हैं. So we can say that a minus b intersection a minus c is a subset of a minus b union c. Now this thing is second. At last we can say that from first and second a minus b union c equals to a minus b intersection a minus c. So this is the solution of this question. Now students, हम इसी सेम प्रॉपर्टी को a minus b union c equals to a minus b intersection a minus c को हम प्रूव करते हैं थ्रू द वेन डायग्राम, जो आपको बहुत समझ में भी आने वाला है और बहुत इम्प्रेसिव लगेगा. सी, सबसे पहले हम लोग LHS देखते हैं a minus b union c को ड्रॉ करना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग b union c ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स. देखिए b union c हमारा बच्चों, ये b union c हमारा बन जाएगा. This blue portion will be the B union C. ये हमारा B union C हो गया. ओके, अच्छा अब देखिए हम लोगों को यहाँ ड्रॉ करना है A minus B union C. तो A minus B union C यदि हमें बच्चों बनाना है, तो अब हम चाहते हैं A में से वो वाला पोर्शन हम डिलीट कर दें जो B union C का पोर्शन हो. ओके, तो हमारा जो पोर्शन बनता है a माइनस बी यूनियन सी का, वो दिस रेड पोर्शन बच्चों बन जाएगा. दिस इज द रेड पोर्शन, दिस. है ना? तो ये जो ब्लू पोर्शन है, ये ब्लू पोर्शन तो हमें दिखा रहा है दिस थिंग. दिस ब्लू पोर्शन इज बी यूनियन सी. This blue portion is B union C. And this red portion is A minus B union C. तो ultimately जो A minus B union C हुआ, वो हुआ बच्चों this thing, this red portion. This represents LHS is A minus B union C. ठीक है. अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस C. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम A माइनस बी ड्रॉ करते हैं. तो A माइनस बी का मतलब है वो वाला A का पोर्शन जो B में आ रहा है वो हटा देंगे बच्चों. तो A माइनस बी पोर्शन हमारा बच्चों बन जाता है दिस. दिस इज द पोर्शन ऑफ A माइनस बी. दिस रेड पोर्शन इज ऑफ A माइनस बी, है ना? तो ये रेड पोर्शन हमारा हो गया A माइनस बी का पोर्शन. अब हम बनाते हैं अपना
बी माइनस सॉरी ए माइनस सी का पोर्शन, तो ए माइनस सी के पोर्शन में हमारा क्या आ जाएगा, हम ए में से बेटा सी का पोर्शन हम माइनस कर देंगे। सी वो ये हो जाएंगे बच्चों, देखेंगे ये जो ग्रीन लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं ये ए माइनस सी पोर्शन की हैं। ओके, ये बेटा ए माइनस सी हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये दिखाता है हमारे को, ग्रीन पोर्शन हमें दिखाता है ए माइनस सी। अब हमें बनाना है अपना आर एच एस। आर एच एस हमारा क्या है बच्चों, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। तो हमें ए माइनस बी और ए माइनस सी का इंटरसेक्शन चाहिए, मीन्स हमें इस पूरे पोर्शन में से वो पोर्शन चाहिए जहाँ पे ग्रीन लाइंस और रेड लाइंस दोनों आ रही हैं। तो वो कौन सा पोर्शन है, सी। वो आपके सामने यही पोर्शन निकल के आ जाएगा, दिस इज द पोर्शन। तो हम ये कह सकते हैं दिस इज द फर्स्ट, this is the first and this is second diagram. From first and second we can say that A minus B union C equals to A minus B intersection A minus C. So हमने आपको दोनों तरीके से प्रूफ समझाया, एक थियोरेटिकल प्रूफ दिया और एक वेन डायग्राम का प्रूफ दिया। होप आपको अच्छे से समझ में आएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।